Good evening, sir. Good evening, Aditya. Am I audible? Yes, sir. Any doubt from the last lecture? सर वो जो आपने होमवर्क में निकालने को दिया था ना सर, वो नहीं निकला मेरे से। So मैंने होमवर्क में आपको दिया था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर माइनस हाफ, राइट? यही कहा था। यस सर। सो आदित्य, म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने कैलकुलेट किया था, बताना क्या था? M1 L1 T M1 L1 T raised to the power minus 2 A minus 2. माइनस टू A माइनस 3, ये था म्यू नॉट। यस सर। और एप्सिलॉन नॉट क्या था? एप्सिलॉन नॉट भी हमने सर ये कैलकुलेट -2 था, -3 नहीं सर। माइनस 2। और एप्सिलॉन नॉट क्या था? M माइनस 1 M -1 L -3 T A2 T क्या था? 1 था। T1 A2 T4 है। T4 है ना, और A2 था। यस पूरे की पावर माइनस हाफ। चलिए ये निकाल लिया था सर। ये जो माइनस पावर है ना, जो -1/2 है सर, ये बस ये समझा दो ये कैसे होगा, मतलब वो ही नहीं लिख रहा। आप मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल ऐड अप द पावर्स, राइट? सो दैट इज m1 minus 1. When you multiply length, it's length to the power 1 and length to the power minus 3. So that will be L to the power 1 minus 3, right? Then you have t. When you multiply it, it's -2. It's t to the power -2 into 4. So -2 plus 4. Then you have a. It's -2 plus 2. This to the power minus. So this is m to the power 0. L to the power -2. It's t square a to the power 0 or whole to the power -2. So the whole power is -2, means multiply each term with -2. You can write this as m0 multiplied by minus half. Okay. So this is L -2, multiply it minus half. Then you have t square multiplied with minus half also. Then its a to the power will be 0. This is how we make this power minus half. We use this power minus half. Yes, Aditya, is it clear? Yes sir. So m is 0, L is 1. See, -2 and minus half gets cancelled out with the 2 and you'll be left with only 1. Then you have t to the power minus 1. So it's L1 t minus 1, which is the dimensional formula for speed. Okay. So मुस्कान, ये लास्ट मैंने होमवर्क छोड़ा था, वो आपसे सॉल्व? हाँ जी मुस्कान। आयुष, आप थे लास्ट क्लास में? एब्सेंट थे आप लास्ट वेडनेसडे, आप आए थे नहीं? Ayush, Muskan, am I audible? Yes, sir. So Ayush, you were absent in the last class? Yes, sir. I was not able to attend class. Muskan, आप थी क्लास में, आपने किया ये हुआ था? Yes, sir. Okay. So up to last lecture हमने complete कर लिया था list of all quantities. सारी quantities का dimensional formula की list complete हो गई थी. Now we will do derivation of formula. Applications of dimensional analysis हम start करेंगे. So when we start applications of dimensional analysis,
सो डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन से पहले आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हें आप कुछ 2-3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. Types of quantities. Types of physical quantities. कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, तो आप उन्हें दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. आप कह सकते हैं एक वो क्वांटिटीज होंगी जिनमें डायमेंशंस होंगी, दूसरी वो क्वांटिटीज होंगी जिनमें डायमेंशंस नहीं होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो यू हैव टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, वन आर डायमेंशनल, another are dimensionless. So these are the two types of quantities that we have. First are dimensional quantities. Second are dimensionless quantities. ये जो dimensional quantities हैं इन्हें भी हम फर्दर दो पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. एक वो क्वांटिटीज होंगी विच आर डायमेंशनल कांस्टेंट्स और एक होंगी जो डायमेंशनल वेरिएबल्स. सो पहला डिवीजन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायमेंशंस हैं तो डायमेंशनल है, डायमेंशंस नहीं है देन दे आर डायमेंशनलेस. अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी विच हैव डायमेंशंस एंड दे आर कांस्टेंट्स. सो आपके पास कुछ क्वांटिटीज मिलेंगी विच आर डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशंस हैं एंड दे आर वेरिएबल क्वांटिटीज. और कुछ क्वांटिटीज होंगी जिनके पास डायमेंशंस हैं बट दे आर कांस्टेंट्स, डायमेंशनल कांस्टेंट. अच्छा ये बहुत बड़ा लिख दिया. So we have dimensional variable and we have dimensional constant. Similarly, we have dimensionless variable and we have dimensionless constants. So dimensional variables के वो examples है जो quantities variable है but they have dimensions, like speed is variable but it have dimensions. Force, it's a variable but it have dimensions. Work done, it's a variable but it have dimensions. Maximum जो आपको quantities मिलेंगी वो इसी क्लासिफिकेशन में आती है, they are variable and they have dimensions. Next are dimensional constants. So मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो कुछ ऐसे कांस्टेंट्स का जिनकी डायमेंशंस होंगी? लेंथ, बट लेंथ तो वेरिएबल है, लेंथ की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ये तो कांस्टेंट होना है, वेरिएबल है. तो यहाँ आएगा कुछ कांस्टेंट्स जिनकी डायमेंशंस हो. अमन सर ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G. This is one example. It's a constant but it have dimensions. Ayush, your example? A quantity which is constant but it have dimensions. Small g. Acceleration due to gravity. So you have gravitational constant, acceleration due to gravity, speed of light. रिसेंटली हमने एक क्वांटिटी करी थी प्लैंक कांस्टेंट. ये सब वो क्वांटिटीज हैं जिनमें डायमेंशंस होंगी बट दे आर कांस्टेंट्स. अच्छा डायमेंशनलेस वेरिएबल का कोई एग्जांपल बताओगे? ऐसी कोई क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस हो बट वेरिएबल हो?
मुस्कान, कुछ याद है कोई क्वांटिटी जो हमने रिसेंटली करी हो विच इज डायमेंशनलेस बट हैव कांस्टेंट्स बट वेरिएबल हो? सर आपकी वॉइस थोड़ी लैग हो रही है। मेरी वॉइस लैग हो रही है। एंगल्स, मुस्कान देखिए मेरे एंड से तो मुश्किल है, मतलब शायद आपके एंड से इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा इशू कर रहा है। मैं दोबारा बोलता हूँ, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, मुझे वो वेरिएबल्स चाहिए जो क्वांटिटीज चाहिए जो वेरिएबल हो बट उनकी डायमेंशंस। एक बहुत अच्छा एंगल है, एक एग्जांपल है एंगल, एक और एग्जांपल है एंगल के अलावा स्ट्रेन, ये सब हमने किया था। एक और एग्जांपल आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सब वेरिएबल हैं एंड दे आर डायमेंशनलेस। इसके बाद आता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कांस्टेंट्स हैं बट दे आर डायमेंशनलेस, लाइक पाई। पाई कांस्टेंट है बट पाई के डायमेंशंस नहीं होते। नंबर्स कांस्टेंट वैल्यूज हैं बट डायमेंशनलेस। ई, जैसे पाई एक कांस्टेंट है ऐसे ही एक कांस्टेंट ई आता है, एक्सपोनेंशियल कहते हैं। स्पीड डायमेंशनलेस है बट कांस्टेंट है। तो ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस आप क्वांटिटीज को ऐसे डिवाइड करते हैं। वर्णिमा बस हमने इतना ही किया है, अभी यही डिस्कस किया, इतना लिखिए फिर आगे बढ़ो। Okay, sir. Just let me know once you have written. Change the slide. सर डायमेंशनल के नीचे दो क्या लिखा हुआ है? दो Dimensional, पॉइंट्स। हाँ, ये डायमेंशनल जो क्वांटिटीज हैं फर्दर हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। दे कैन बी डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशनल कांस्टेंट्स। मींस ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस होंगी एंड दे आर वेरिएबल। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस होंगी बट दे आर कांस्टेंट। ऐसी ये वो क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनलेस हैं बट वेरिएबल हैं। ये वो क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनलेस हैं बट कांस्टेंट। तो ब्रॉडली हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं। ये लिखा आप लोगों ने? रब करूं इसको मैं? यस सर 1 मिनट। Okay, so I'm changing the slide. हो गया वर्णिमा? यस सर हो गया। अमन, आयुष कहाँ है आज? आप अकेले? सर आयुष है सर यहाँ पे। नहीं, तो आयुष कुमार है। Okay. अब देखो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ
dimensional analysis. आपके सिलेबस में 3 मेजर एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की. फर्स्ट एप्लीकेशन is checking the accuracy of formula, is checking the accuracy of formula. Second application is derivation of formula. Derivation of formula. Third is conversion of one system of unit into another. Conversion of one system of unit into another. ये आपके पास 3 applications हैं. All 3 applications starts from a common principle, which is principle of homogeneity of dimension. Principle of homogeneity So देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या कहता है. इट्स अ वेरी जनरल प्रिंसिपल. ये आप हमेशा से जानते हैं कि अगर मैं आपको मास दूं तो क्या मास में आप लेंथ ऐड कर सकते हो. उसका इज इट पॉसिबल टू ऐड लेंथ टू मास. No, sir. तो सर थर्ड एप्लीकेशन क्या आती है. थर्ड एप्लीकेशन है आई एम कमिंग टू. मैं स्लाइड पर आ जाऊंगा. कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर. अभी आऊंगा स्लाइड पर. अभी तो सुनते रहो फिर लिख लीजिएगा. सो जब भी आपके पास मास होगा तो आप मास में क्या ऐड कर सकते हो. मास ऐड कर सकते हो. आप मास में मास ऐड करोगे आपको मास मिलेगा. लेंथ है, लेंथ में से आप लेंथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट करके लेंथ मिलेगा. टाइम में टाइम ऐड कर सकते हैं. टाइम में टाइम ऐड करके टाइम मिलेगा. यही तो होता है. दिस इज द सिंपल थिंग इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. ये सिर्फ ये कहता है जिन क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हो या आप जिन क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दे हैव सेम डायमेंशन. So quantities having same dimensions can only be added or subtracted. कि आप सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनकी डायमेंशन सेम है. जिनकी डायमेंशन डिफरेंट है आप ना उन्हें ऐड कर सकते हैं ना आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. एक चीज और, अगर एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड में आयुष मास है तो इक्वेशन साइड राइट साइड में भी क्या होना चाहिए. मैंने एक बड़ी सी इक्वेशन लिखी और उसके लेफ्ट में हर क्वांटिटी का डायमेंशन मास का डायमेंशन है, तो राइट वाली क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होना चाहिए आयुष. सॉरी आयुष यू आर नॉट ऑडिबल. क्या कह रहे थे आप. मैं सुन नहीं पाया. सर मास होना चाहिए. मास होना चाहिए. लेफ्ट में अगर मास है तो राइट में भी क्या मिलेगा. मास मिलेगा. सो डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज on both sides of equation are same or should be same. तो अगर मैं एक इक्वेशन दे दूं उसके लेफ्ट में जो दो क्वांटिटीज होंगी, जो भी क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन सेम होंगी. तो पहला ये आप जिन क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दे शुड हैव सेम डायमेंशन. और अगर आपको एक इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन के लेफ्ट में और इक्वेशन के राइट में जितनी भी क्वांटिटीज होंगी दोस क्वांटिटीज शुड हैव सेम डायमेंशन.
तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ मास है, अगर मैं मास में मास ऐड करता हूँ देन आई विल गेट मास। इसे ऐसे लिख सकते हैं m1 प्लस m1 विल गिव इट, मास में मास ऐड करोगे मास मिलेगा। इफ यू हैव लेंथ, लेंथ से लेंथ सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट लेंथ। ऐसा मत कर देना कि इसे कैंसिल करो। देखो डायमेंशनल एनालिसिस इज क्वालिटेटिव, ये आपको ये बता रहा है कि आप जिन क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो, ऐड करने के बाद वही क्वांटिटी आएगी, मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा। 1 kg के मास में से 1 kg के मास को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 kg का मास आएगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस जीरो नहीं बताता, वो बताता है मास है बस। तो इसीलिए L1 और L1 को कैंसिल मत कर देना कभी। L1 माइनस L1 विल बी L1। चलिए ये आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं आपको कुछ क्वांटिटीज लिख कर देता हूँ, देखो अगर कोई लास्ट क्लास में नहीं भी था तब भी मैटर नहीं करता, आपको सब समझ में आएगा। I'm writing a plus b is equal to c plus d. a और b को आप ऐड कर रहे हो, आपको पता है ऐड तभी आप कर सकते हैं that when they have same dimensions. So dimensions of a is equal to dimensions of b. आप c और d को भी ऐड कर रहे हो, आप ऐड तभी कर सकते हो when they have same dimensions. तो आप लिख सकते हो dimensions of c is equal to dimension of d. c and d will have same dimension. अब ab और cd को कंपेयर तो तभी करोगे ना जब उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। तो आप लिख सकते हो a b c and d all have same dimension formula. अब it is true not just for addition but also for subtraction. This is true even for subtraction. Even if you are subtracting things, then this is valid. A minus b will be, if you are subtracting a b and c d, then a and b will have same dimensions, c and d will have same dimensions. अब देखो कितनी भी बड़ी इक्वेशन क्यों ना हो, मैं एक बहुत बड़ी सी इक्वेशन लिख दूं a e to the power c minus d by e minus f, और यहां पर फिर मल्टीप्लाई करके मैं ऐसे लिख दूं g plus h। मुझे बता सकते हो यहां से किन किन क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा? आयुष कुमार आप बताएंगे मुझे। इतनी सारी क्वांटिटीज मैंने लिख दी, आयुष मुझे बता दो किन किन क्वांटिटीज में डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। आयुष गलती होगी तो होने दो, कोई टेंशन नहीं, बताओ बस। Sir, y equal to ae. ना नो, देखो a के साथ और भी तो क्वांटिटीज हैं, तो y और a को तो नहीं कंपेयर कर सकते। और बताओ और किन दो क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होगी? आयुष Some so a plus b. हाँ देखो a प्लस बी तो है ही नहीं, मैंने बी दिया ही नहीं, भूल गया मैं तो बी दिया। चलो आयुष के बाद में आएंगे, पहले कहीं और चलते हैं। आदित्य बताएगा। आदित्य यहाँ कोई क्वांटिटीज मिल रही है जिनकी डायमेंशन सेम हो? सर g and h। जी एंड एच क्यों डायमेंशन सेम होगी? सर क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, मतलब ऐड हो रही है, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले साइन ढूंढ लेने। जहां एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन होंगे दोस क्वांटिटीज विल हैव एग्जैक्टली सेम डायमेंशंस। मुस्कान ढूंढिए, कुछ क्वांटिटीज ढूंढिए which have same dimensions. Find two quantities which have same dimensions fast. C minus D. Yes, subtracting c and d they will have same dimensions. Dimensions of c is equal to dimensions of d. वर्णिमा आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ मुझे बताओ दो क्वांटिटीज ऐसी ढूंढो वर्णिमा which have same dimension. Sir, E minus F. E minus f, which means e and f will have same dimensions. So बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ढूंढो जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बाकी को छोड़ दो, बाकी सबकी डायमेंशन सेम। मैं यहाँ कंपेयर नहीं कर सकता ना, बहुत सब मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जहां जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसे उठा लिया करो। आयुष कुमार आई होप अब क्लियर होगा। Yes, sir, it is now clear. ओके गुड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग टू क्वांटिटीज ना, मैं एक काम करता हूँ ए बी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं सी डी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं ई एफ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और मैं जी एच को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आयुष शर्मा क्या लगता है
A and B will have same dimensions. I'm multiplying them, or they can have different dimensions. Sir, can have different. Can have different. Now, when we multiply two quantities, those two quantities can have different dimensions. The best example is force is mass into acceleration. Mass and acceleration have same dimension. When we divide two quantities, they can have different dimensions. One example is velocity is displacement upon time. Displacement and time have different dimensions. So this principle is not valid for multiplication and division. This is valid for addition and subtraction. So A and B can have different dimensions. C and D can have different dimensions. Ayush Sharma, what about AB and CD? They will have different dimensions or same dimensions? The same cause they're adding. Same dimensions, because we are adding. Perfect. Dimensions of AB is equal to dimensions of CD. Similarly, I'm adding EF and GH. They will have same dimensions. I'm writing directly EF, which is equal to GH. Okay. अच्छा, मुझे ये जितना भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना अभी, ये सब आप जब प्रीवियस ईयर्स देखोगे नीट और जेईई के क्वेश्चंस, आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा कि इसी स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस है। मैं वो सारे न्यूमेरिकल के स्ट्रक्चर यही डिस्कस कर लेता हूँ ताकि न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो। अच्छा, एंगल कैसा होता है? एंगल की डायमेंशंस होती है या डायमेंशन लेस होता है? Sir, dimension. Dimensionless. Yes. डायमेंशन लेस होता है ना। अच्छा, जब मैं साइन लिखता हूँ, साइन ऑफ ए लिख दिया तो ये ए क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा, ए एरिया होगा या ए एंगल होगा? Sir, A will be angle. Angle होगा. ए विल बी एन एंगल ना। साइन, कॉस, टेन, कॉट सब एंगल के लिए यूज होता है। सो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, मुझे बताना है कि क्या क्या एंगल है। साइन ऑफ सी प्लस डी माइनस ई, बता सकते हैं क्या क्या एंगल है? सी प्लस मतलब सी डी और ई, सी डी ई तीनों एंगल्स है, और तीनों कैसे होते हैं? एंगल डायमेंशनलेस। क्यों एंगल है? बिकॉज दिस आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ साइन। एंगल आ रहा है, साइन के बाद एंगल आता है। साइन डिफाइंड नहीं है एंगल के लिए, साइन टाइम के लिए डिफाइंड थोड़ी ना होता है, कॉस टाइम के लिए डिफाइंड थोड़ी ना होता है। तो सी बी एंगल, डी बी एंगल, ई बी एंगल, सी डी ई सब एंगल। और सारा एंगल कैसा होगा? सी डी ई ऑल आर डायमेंशनलेस, सब डायमेंशनलेस हो जाएगा। क्लियर है? Let's take one more example. मैं आपसे कहता हूं आई एम राइटिंग e to the power सम a plus b। अब ये जो e की पावर है ना, ये हमेशा नंबर हो। अब e क्या है? e का नाम एक्सपोनेंशियल है। उसके आगे एक्सपोनेंशियल क्या होता है? टेंशन मत लो। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। वी विल डू एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी मच डिटेल, बट अभी कुछ टाइम के बाद हम करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, बट अभी नहीं। अब मुझे ये बताओ कि एक्सपोनेंशियल नंबर के लिए डिफाइंड है कि एक्सपोनेंशियल की जो भी पावर होगी वो पावर नंबर होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ a प्लस बी। नंबर कैसा होता है भाई? डायमेंशंस होती है कि डायमेंशन लेस होता है? डायमेंशनलेस। Dimensionless. तो a b दोनों कैसा आ गया? Dimensionless. डायमेंशनलेस। वेरी। अब जस्ट लाइक दिस एक और कहानी होती है। एक्सपोनेंशियल के बाद ना वो लॉग दे देगा। वह लॉग है a प्लस बी का, लॉग भी नंबर के लिए डिफाइन करते हैं। अगेन लॉग होता है क्या है? टेंशन नहीं लेना, इसको कंप्लीट कर एरर हम यही सब करेंगे। LOG लिखे या LN लिखे, दो अलग अलग तरह के लॉग है, लेकिन लॉग है, और लॉग भी नंबर के लिए डिफाइंड है, नंबर के लिए डिफाइंड। और नंबर कैसा होता है? डायमेंशनलेस। सो a and b आर डायमेंशनलेस। सो मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखवाए, अगर ये सारे पॉइंट्स आप एक साथ दिमाग में रख सकते हो तो फिर आपको आगे के क्वेश्चंस में परेशानी नहीं। जस्ट नोट इट डाउन। अच्छा, इससे पहले से नोट करो एंड आस्क क्वेश्चन। सोचो जहां डाउट्स आ रहे हैं और कुछ आपको लगता है ऐसा मैं कह रहा हूं जैसा नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, सोचिए। देखो, एजुकेशन का मोटिव सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं होता। फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूले रटने का नाम नहीं है। It's a training of mind to think. सोचने की आदत है। क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए। बस शुरू में क्रॉस क्वेश्चनिंग गलत हो तो बात। अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि वो सोचा करे।
आप इतना लिख लो तो मुझे प्लीज बता देना, मैं इसको फिर तो लिख लिया ना यार आपने। अच्छा आप लोग असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं? जो असाइनमेंट्स आपके पास जाते होंगे। यस सर। Yes, sir. जब लिखो तो मुझे बताओ, मैं स्लाइड चेंज करूँ। Sir, done. ओके चल इसे लिख। सर लास्ट स्लाइड करने हो गया सर। हो गया सर। फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्म। चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ। देखो बड़ी आसान सी एप्लीकेशन है, नाम बता रहा है क्या करना है आपको। जस्ट चेक करना है कि फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग। फॉर्मूला कैसे करेक्ट और रॉन्ग होगा? फॉर्मूले की दोनों साइड इक्वेशन है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला दे। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है इस फॉर्मूला करेक्ट। अगर लेफ्ट और राइट के डायमेंशन फॉर्मूला अलग आ रहे हैं दैट मींस फॉर्मूला गलत। एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको दे रहा हूँ, t इज 2 पाई रूट ओवर l बाई, ये दे दिया मैंने। तो यहां जो मैं t यूज कर रहा हूं दैट t इज टाइम पीरियड। ये जो मैं l यूज कर रहा हूं दैट l इज लेंथ। जो मैं g यूज कर रहा हूं दैट्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको चेक करना है, चेक एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। चेक एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। आपको इस फॉर्मूले की एक्यूरेसी चेक करनी है। So left or right side should be equal, sir. Yeah, the dimensional formula of left hand side and right hand side should be. If it is equal, then the formula is correct. So देखो left hand side जब मैं लूंगा it's t. T is time, dimensional formula is t1. Right hand side में अगर मैं लिखना शुरू करूं सबका dimensions, 2 का dimension लिखते हैं। ये मुझे मुस्कान बताएंगे। या मुस्कान 2 का dimensional formula कुछ होना चाहिए। मुस्कान क्या सर? 2 का कोई dimensional formula होगा? ये 2 या dimensionless होगा? मैं बताऊं Sir, dimensionless. Dimensionless। एक मिनट आदित्य, मैं भी आऊंगा आपके पास। What about pi? मुस्कान, मुस्कान अनम्यूट करके रखो माइक, अभी म्यूट मत। मुस्कान पाई का डायमेंशंस होगा या डायमेंशनलेस होगा? मुस्कान इतना टाइम क्यों लगता है? अभी तो करा है, पाई डायमेंशनलेस है।
Yes, sir. दोनों डायमेंशनलेस। L लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा उसका नाम ही बताइए जल्दी। L1. L1। G is acceleration due to gravity, इसका डायमेंशन क्या होगा? एक्सेलरेशन है, डायमेंशंस तो याद होने चाहिए। वर्णिमा याद है कुछ डायमेंशंस? G का क्या होगा? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। कोई नहीं बताएगा तो अब आदित्य बताएगा। आदित्य, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला जल्दी से बताओ। सर L1t minus 2। L1 t minus 2, ये आ गया। सो अब इसको अगर मैं कंबाइन करता हूँ, देखो ये कितना होगा। जब आप डिवाइड करोगे देन पावर गेट सबट्रैक्ट आउट, -1 हो जाएगा। t टू द पावर -2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, t स्क्वायर आ गया। और इसे तुम क्या लिख सकते हो? इसे तुम ऐसे लिख सकते हो, रूट ओवर L टू द पावर 0 t स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे तो आपको क्या मिलेगा? t1। भाई t स्क्वायर का रूट लोगे तो t बचेगा ना। So LHS is equal to RHS. Dimensions of LHS is equal to dimensions of RHS. Same आगे। कैसे भाई, फॉर्मूला करेक्ट है रॉन्ग है? तो करेक्ट है। करेक्ट। Correct, sir. तो आप लिख सकते हो कि आपको जो फॉर्मूला दिया था, दैट फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा नो, इफ अ फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, अब मैंने देखो ये नहीं लिखा कि फॉर्मूला करेक्ट है, मैं ये नहीं लिख रहा कहीं भी कि फॉर्मूला करेक्ट है, मैं डायमेंशनली करेक्ट लिख रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला अब भी गलत हो सकता है, ये फॉर्मूले के अब भी गलत होने के चांसेस। कैसे गलत हो सकता है? कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर? अब भी गलत हो सकता है फॉर्मूला, डायमेंशनली करेक्ट आ रहा हो बट इट कुड बी अ रॉन्ग फॉर्मूला। क्या पॉसिबिलिटी है? सर हम इसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। हाँ देखो, एग्जैक्ट फॉर्मूला में 2 पाई होता है, लेकिन अगर मैं 2 पाई की जगह इसे मैं मान लो मैं 7 पाई कर देता हूँ, सॉरी 2 पाई की जगह मैं इसे 7 पाई कर देता हूँ। वर्णिमा आपको क्या लगता है, अगर मैं डायमेंशन एनालिसिस यूज करूं तो 7 पाई में भी डायमेंशन सेम आएंगी या डिफरेंट आएंगी? वर्णिमा तो डिफरेंट है। डिफरेंट होगी। दोबारा सोचो, 7 एंड पाई के डायमेंशंस हैं या दे आर डायमेंशनलेस? सर दे आर डायमेंशनलेस। अगर दे आर डायमेंशनलेस तो जब आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या डायमेंशंस आएंगे? यहाँ कुछ मिलेगा आपको? नो सर, कुछ नहीं। डिपेंड किस पे करेगा? एल और जी पर ना। अब भी अगर मैं इसको 7 पाई कर दूं और आप डायमेंशनली कैलकुलेट करो, यू विल गेट सेम। एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम है। लेकिन वर्णिमा आपका लॉजिक क्या करता है? कहता है एक फॉर्मूला है उसमें 2 पाई आता है, मैंने 7 पाई लगा दिया। फॉर्मूला आपको क्या लगता है, करेक्ट है या रॉन्ग है? अपना लॉजिक बताना और कुछ नहीं। भाई आपको पता है एक फॉर्मूले में 2 पाई आता है, मैंने उसमें 7 पाई लगा। सर करेक्ट। आप करेक्ट कहेंगे उसे या रॉन्ग कहेंगे? डायमेंशन भूल जाओ, जनरल बताऊं। सर डायमेंशनली करेक्ट होगा। डायमेंशनली करेक्ट होगा, बट एक्चुअल में करेक्ट होगा या रॉन्ग हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट आएगा बट इनकरेक्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अगर मैं हाफ mv स्क्वायर की जगह 1/3 mv स्क्वायर कर दूं, डायमेंशंस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट दिस फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली रॉन्ग फॉर्मूला, इट्स नॉट अ करेक्ट फॉर्मूला, गलत हो गया फॉर्मूला। सो इफ अ फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट तब भी वो इनकरेक्ट हो सकता है। अगर मैं कह रहा हूं एक फॉर्मूला है दैट इज डायमेंशनली करेक्ट, तो हो सकता है कांस्टेंट की वजह से वो इनकरेक्ट हो। इसीलिए डायमेंशनल एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम कभी ये नहीं लिखते कि फॉर्मूला करेक्ट, हम हमेशा ये लिखते हैं इट्स डायमेंशनली करेक्ट। मैं नहीं जानता, गलत भी हो सकता है। नोट इट डाउन। लावेश क्या हो गया, आज आप कैसे लेट हो गए? सर लिंक लेट आया था। लिंक लेट आया। सो लावेश हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने एक एप्लीकेशन स्टार्ट करी है डायमेंशनल एनालिसिस की, और हमने दैट इज द चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। इसमें हम डिसाइड कर रहे हैं कि कोई दिया हुआ फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग। डिसाइड करने का बड़ा आसान काम है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस देखते हैं और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस देखते हैं।
अगर ये डायमेंशंस मैच कर जाती है तो कहते हैं फॉर्मूला करेक्ट है, डायमेंशंस मैच नहीं करती तो फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। सब लिखो इसे, मैं लाविश को जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं। जैसे एलएचएस में टाइम है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t1 होता है। राइट में लाविश 2 पाई रूट ओवर l बाई 2 पाई नंबर है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी। l लेंथ है l1, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है l1 t माइनस। जब आप डिवाइड करोगे ना तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, t माइनस 2 ऊपर जाके t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर का रूट लोगे तो t1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आ गई, तो मैं कहता हूँ फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट। लाविश कुछ आया समझ में? यस सर। जल्दी लिख डालो इसे, तुम्हें तो लास्ट टाइम डायमेंशंस तो आ गया था ना, अब परेशानी नहीं आती है। ये काम करो लाविश, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सबने लिखा, बाकी सब लोगों ने? यस Yes, sir. Okay, good. So let's move on to the next section. Next one. The second is second example. Huh? First question, आप ही करो, मैं कहाँ तक solve करूँ? I'm writing this formula 6 pi eta r square v. In this formula, F is force. आपके पास सबकी लिस्ट है डायमेंशंस की, बट स्टिल मैं लिख रहा हूँ जस्ट इन केस आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी हमने डिराइव किया है, m1 l-1 t-1। r रेडियस है, लेंथ है, v वेलोसिटी है l1 t-1। देखो ये डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे हुए नहीं होंगे, इसी के लिए मैंने आपको लिस्ट बनवाई, आपको याद होने चाहिए। चेक एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। चेक एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की एक्यूरेसी चेक करके बता दो जरा सा कि करेक्ट है कि रॉन्ग। और लाविश करना है, ये होगा तुमसे, बस डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रखते हैं। 6 नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, पाई की कोई डायमेंशन नहीं। सर v is velocity. v is velocity, yes. सर L1 velocity का dimension सर l1 t minus 2. -1, एक्सीलरेशन है -2, वेलोसिटी -1। Okay. देखो 2 मिनट का क्वेश्चन है, हार्डली 2 मिनट लगते हैं इसमें। बस आपको ये बताना है डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आदित्य गलत आ रहा है, चेक करो दोबारा, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कहीं गड़बड़ कर रहे हो आदित्य। और मुझे लग रहा है तुम गड़बड़ कर रहे हो, लेंथ का स्क्वायर नहीं कर रहे। वर्णिमा आया कुछ? करेक्ट इनकरेक्ट? सर कर रही हूँ। जल्दी 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 स्पीड। सर इसमें फॉर्मूले को ये देखना है कि करेक्ट और इनकरेक्ट। क्या दोबारा बोलो लाविश? सर इसमें फॉर्मूले को ये देखना है करेक्ट और बिल्कुल इनकरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम ये काम करोगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखोगे, राइट हैंड साइड की लिखोगे, अगर बराबर आ जाती है तो करेक्ट है, नहीं आती तो इनकरेक्ट है। यहाँ से तुम हेल्प ले सकते हो पिछले वाले एग्जाम्पल से, मैंने पहले एलएचएस का लिखा, फिर मैंने आरएचएस का लिखा और मैंने बताया करेक्ट है। हाँ जी आदित्य, Correct sir. करेक्ट आ गया? Yes sir. गड़बड़ करो, चेक सर करो। इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट। सर इसमें मास ऐड हो रहा है 2 बार और फोर्स में मास। क्या क्या आ रहा है मुस्कान? करेक्ट इनकरेक्ट? Incorrect. इनकरेक्ट आ रहा है, ओके। और वर्णिमा? Yes, sir, incorrect आ रहा है। इनकरेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इनकरेक्ट है यार, करेक्ट थोड़ी ना। लाविश करो इसे पूरा कंप्लीट करना, सॉल्यूशन बाद में देखना, जो मैं करा रहा हूं उसे बाद में देखना, पहले अपनी कैलकुलेशन। आई एम श्योर तुम कर लोगे। फोर्स है, फोर्स की डायमेंशंस m1 l1 t-2। आरएचएस में है 6 पाई ईटा r स्क्वायर v। 6 dimensionless, pi dimensionless, eta is m1 l-1 t-1, r is radius which is l1 square,
v is velocity which is L1 t minus 1. एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो यहाँ आप लोग करते हैं, स्क्वायर भूल जाते हैं. कौन कौन भूला था स्क्वायर इस बैच में? कोई नहीं भूला? कान भूल. L square L1 t minus 1. देखो ये आया m1. L जब आप लोगे देखो इट्स -1 और ये स्क्वायर और ये 1 तो ऐड कर दो. Then you have t. So ये आया m1 L square. So this is m1 L square t0. ये आ रहा है. सर t minus 2 नहीं होगा? -2 क्यों होगा? मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ, तो ऐड ही तो करूंगा. -1 2 और 1 हम मल्टीप्लाई. सर t t. हाँ सॉरी -2 बिल्कुल -2. So देख लो यार, मैच तो नहीं कर रहा. लाविश बताओ यार, यहाँ तक आया? Yes, sir. So they are not equal, right? Dimensions of LHS is not equal to dimensions of RHS. So formula is incorrect. It's a wrong formula. So this is a simple application. 2 questions और करेंगे, वो मैं solve करूंगा 2 questions. उसके बाद फिर हम देखेंगे इस questions में और type के क्या क्या varieties हैं. Can I change the slide now? yes. Yes, sir. See the next question. The next question says कि मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ. S is ut plus half at square. So देखो यार, S डिस्प्लेसमेंट है. देखिए u is initial velocity. U is initial velocity. T is time. A is acceleration. I have to check whether the formula is correct or not. So जब फॉर्मूले में कई टर्म्स हो ना, तो हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है. डिस्प्लेसमेंट है. ut और हाफ at स्क्वायर को आप तब ऐड कर सकते हैं when they have same dimensions. तो जो 3 क्वांटिटीज हैं, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आना चाहिए, तभी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट. सॉल्व करते हैं. डिस्प्लेसमेंट है. लाविश कुछ याद है डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? Yes, sir. क्या था? अरे भूल गया. इतनी गलत बात है, तुम लोग इतने जल्दी भूलते हो. इसीलिए स्टार्टिंग में डायमेंशंस कराया जाता है कि तुम लोगों को पढ़ने की आदत पड़ जाए. L1 डायमेंशंस ऑफ ut चाहिए. u वेलोसिटी. आदित्य वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला. सर L1 t minus 1. L1 t minus 1 और t is time which is t1. So it's L1 t0 और L1 ही लिख दो. अब मुझे चाहिए हाफ at स्क्वायर का डायमेंशन. लाविश ये भी तुम ही बताओगे. हाफ at स्क्वायर. लाविश हाफ नंबर एक कोई डायमेंशन होगा? No, sir. A एक्सीलरेशन डायमेंशन बता दो. Sir, acceleration का. हाँ यार, पीछे पलट के देख लो, लिस्ट है तुम्हारे पास तो पूरी. L1 Good. t minus 2. वेरी गुड. L1 t L1 t minus 2 और ये t है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला. Sir, t time होता है. t1. स्क्वायर. हाँ Yes. सो ये हो गया L1 t minus 2 t स्क्वायर. सो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, पावर्स विल गेट्स एडेड अप. सो वी विल बी लेफ्ट विद L1. सो देखो तीनों टर्म्स की डायमेंशन सेम आ रही. Dimensions of S is equal to dimensions of ut is equal to dimensions of
हाफ ए टी स्क्वायर। तो फॉर्मूला कैसा है? Sir, it is dimensionally correct. डायमेंशनली करेक्ट, वेरी गुड। देखो इतना, इसी तरह का एक और मैं आपको देता हूँ और गलती मत करना। करो करो, इतना लिखो। चलो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, स्लाइड चेंज कर दूं। लवेश लिख लिया था, पूर्णिमा? ओके, Yes, sir. सर हो गया। and the displacement for nth second is u plus a by 2 2n minus 1। यहाँ जो dn दिया है इसमें आपको चेक करना, बता रहा हूँ dn क्या है। dn is displacement covered in nth second। So it's not just displacement, this is basically displacement by time, so it's L1 t minus 1। This u here is initial velocity, a here is acceleration, n is nth second, nth second means time। और यहाँ जो 1 आ रहा है ना, ये नंबर नहीं है, ये 1 सेकेंड है, t1 होगा। चेक करना भाई क्या रहा है, डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट है। और मैं एक चीज आपको बता दूं यहाँ पर, ताकि आप में से कोई गड़बड़ ना करे, अगर मैं L1 माइनस L1 लिखता हूँ तो कैंसिल मत कर देना, ये L1 होता है। यही मास के लिए भी ट्रू है, यही टाइम के लिए भी ट्रू है। शुरू हो जाओ जल्दी से, और कोई गड़बड़ ना हो। आदित्य हर स्टेप को डबल चेक करना, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और प्लीज आंसर्स ना अपने चैट रूम में लिखिएगा, आप माइक पे बोलेंगे बताऊंगा भी नहीं कि सही है गलत। सर ये लास्ट वाला क्या लिखा है? 1 सेकेंड, ये 1 ना टाइम है, 1 सेकेंड t1। गुड आयुष, वेरी गुड आयुष, ठीक आ रहा है आपका। अमन का, अमन गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, आप चेक कीजिए कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। आदित्य, आदित्य अब भी गड़बड़ आ रहा है, चेक करो कहाँ गलत कर।
गलत है, आपका आंसर गलत है। मुस्कान, वर्णिमा, क्या हो गया? लाविश, तो देखिए विद इन फ्यू डेज आई विल चेंजिंग योर, मैं इस बैच को रिशफल करूंगा दोबारा से। सो आप सब अपनी अपनी स्पीड की बैचेस में होंगे, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि बैच स्पीड में जा रही है, स्लो जा रही है। बस ये ट्रायल क्लासेस में मैं रिशफल नहीं कर पाता, एक बार ट्रायल ओवर हो जाए मैं रिशफल करता हूँ बैचेस। ओके, आई एम सॉल्विंग इट। डीएन, यस लाविश, क्या है? करेक्ट, इनकरेक्ट? सर करेक्ट। करेक्ट, सही है। dn is L1t minus 1, dn की डायमेंशंस हो गई। u वेलोसिटी यार, वेलोसिटी तो अभी डिस्कस किया था, L1t minus 1। अब ये जो a/2 2n minus 1 है ना, सब यहाँ गड़बड़ कर, जिसने भी गड़बड़ करी है वो यहाँ करी है। आदित्य ने भी यही करी है, अमन ने भी यही करी है। मुस्कान, ये सॉल्व हुआ था या यहीं अटके हो? मुस्कान, वर्णिमा, आप लोग यहीं स्टक हो? चैट नहीं हो पा रही पर। क्या? अच्छा, चैट नहीं हो रही? मैं फैकल्टी हूँ, हो जाएगी। नहीं हो रही तो सर वो चैट ऑफ दिखा रहा है। अच्छा ही। अब आ जाओ। सो देखो, अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला लगता हूँ, ए एक्सेलरेशन है L1t minus 2। देखो 2 कुछ भी नहीं, नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं। सिमिलरली दिस 2 इज अ नंबर, कोई डायमेंशन नहीं। बट n टाइम है t1, 1 सेकेंड है, टाइम है t1। So that is L1t minus 2, t1 minus t1 is t1। वर्णिमा, ये समझ में आया ये स्टेप? t1 minus t1 कैंसिल क्यों नहीं हुआ? Yes, sir. L1t minus 2 plus 1, L1t minus 1। वर्णिमा, क्या लगता है, इट्स करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर्मूला? चेक करो बच्चे, सब तो मैंने कर Sir, दिया। it is आप correct. हाँ, Sir, it is correct. करेक्ट फॉर्मूला ना, dn u a/2 2n minus 1 सब इक्वल, इट्स अ करेक्ट फॉर्मूला, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला। आदित्य, कहाँ गलती हो रही थी? a/2 है 2n minus 1 में? सर मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं करा था, t1 माइनस t1 में मल्टीप्लाई करके t रेज़ टू द पावर 2 आ गया था मेरा। चलो, सो ये तो इस एप्लीकेशन के इजी क्वेश्चंस थे, जहां आपको चेक करना होता है फॉर्मूला करेक्ट है रॉन्ग। डन के क्वेश्चंस वो होंगे जहां वो फॉर्मूले में आपको बता देगा कि फॉर्मूला करेक्ट है, बट कुछ टर्म्स अननोन होगी, अननोन कैलकुलेट करना। इतना लिख लीजिए। हाँ जी, चेंज कर दूं स्लाइड? यस। Yes. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको बता देगा कि फॉर्मूला करेक्ट है। वो आपसे पूछेगा अननोन, फॉर्मूले में कहां पर कुछ अननोन है, वो अननोन कैलकुलेट। जैसे वो आप, मैं बहुत सिंपल सा स्टार्ट करता हूँ। ये मास है, और ये ए है, और ये बी है, और ये सी है। एम मास है। कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ एपीएच। कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ ए बी एक्स। सर सारे मास होंगे। बहुत बड़े सब मास होगा ना। देखो मास में आप
क्या ऐड कर सकते हो? मास ऐड कर सकते हो। जहां एडिशन हो जाए वहां डायमेंशंस इक्वल है, मास में मास ही तो ऐड होगा। तो आप ए लिख सकते हो कि इसको मैं ऐसे लिखता हूं, dimensions of A is equal to dimensions of M। अब एक चीज और देखो, M और A को ऐड करने के बाद जो भी आएगा, मुस्कान क्या लगता है, मास में मास ऐड कर मास आएगा या कुछ और भी आ सकता है? मुस्कान, मास में मास ऐड कर मुस्कान मास ही आएगा या कुछ और भी आ सकता है? मास। तो B का डायमेंशंस बता सकते हो क्या होगा? B का डायमेंशन B मास का डायमेंशन होगा। B और C को ऐड कर रहे हो तो डायमेंशंस इक्वल होगा डायमेंशन। तो सब A B C सबका डायमेंशन M बन गया। ये क्लियर है सबका? सर इसमें ए बी सी कोई कांस्टेंट हो सकता है? नहीं, मतलब कांस्टेंट नहीं देगा, फिर तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। देखो अगर A B C कांस्टेंट्स होते ना तो फिर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि मास में अगर तुम कुछ ऐड कर रहे हो तो मास ही हो सकता है, कोई और कांस्टेंट नहीं, फिर गलत हो जाता, मास ही होगा हर। आई एम गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल, थोड़ा सा टफ करते हैं तो बहुत इजी था। f प्लस, थोड़ा सा टफ कर रहा हूँ, ज्यादा टफ नहीं कर रहा। f प्लस a रूट x इज इक्वल टू bt स्क्वायर प्लस f4। मुस्कान अपना माइक जरा सा अनम्यूट करो, बहुत टाइम लगता है तुम्हारे माइक पर अनम्यूट करो, मुझे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना है। क्योंकि देखो यहाँ लर्निंग में छोटी बात इसीलिए रखी जाती है कि हम डिस्कस कर पाए। फिजिक्स ज्यादा सब्जेक्ट ना सुन के नहीं सीखा जाता, सीखते तभी है जब आप डिस्कस करेंगे, गलत करेंगे धीरे धीरे फिर ठीक होना शुरू हो जाएगा। और ये ट्रायल क्लासेस इसीलिए हैं कि एटलीस्ट हम फैकल्टी से डिसाइड कर पाते हैं कि आपके लिए क्या बैचेस सुटेबल होंगे। तब वो डायग्नोसिस सेशन में थोड़ा बहुत डिसीजन ले लिया जाता है, बाकी डिसीजन ये 4 क्लासेस जो हमारी ट्रायल होती है। ऑफलाइन कोचिंग भी होती है? हाँ सर ऑफलाइन कोचिंग होती है? लाविश यार ऑफलाइन है, लेकिन अभी हम प्रेफर नहीं कर रहे। सर वैसे ऑफलाइन किस साइड होती है, मतलब कौन से प्लेस पे? ये साउथ दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल है जसोला, बस वहां पर ऑफिस। बट ऑफलाइन का तो अब जमाना एटलीस्ट कोचिंग के लिए जा चुका है। मतलब जितने टाइम आप ट्रैवल करने में, जितना हमारा बच्चा ट्रैवल करने में लगाता था, उतने टाइम में तो लेक्चर खत्म हो। ओके, अब देखो यहाँ पर आप इनको ऐड कर रहे हो, ए बी और सी का मुझे डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। मुस्कान आपसे स्टार्ट करते हैं, मुझे बता दो किन 2 क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। मुझे ए निकालना है पहले, कोई 2 क्वांटिटीज बता दो मुस्कान जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। फोर्स और ए। वेरी गुड, फोर्स एंड ए रूट एक्स विल हैव सेम डायमेंशंस। सबका डायमेंशंस पता होता है। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 रूट एक्स। -2, ए अननोन है, एक्स लेंथ है। अच्छा, रूट का क्या मतलब है? पावर कितनी होगी वर्णिमा? मैं रूट हटाकर पावर लगाना चाहता हूँ, कितनी पावर होगी रूट की जगह? हाफ। रूट मीन्स पावर इज हाफ। सो आई गेट m1 l1 t minus 2 is a l to the power. So we get a is m1 l1 t to the power minus 2, it's over l to the power. So a is m1 l to the power 1 minus half t to the power minus 2. So you have m1 l half t to the power minus 2 is equal. So this is the dimensional formula for a now. m1 l to the power half t to the power minus 2. हाँ जी, क्लियर है ये? यस सर। अब एक काम करो, देखो a तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, गेट द डायमेंशंस ऑफ b। चलिए कैलकुलेट करके बताओ, कितना लिखिए
and get the dimensions of B. B की dimensions calculate करके बताइए. बता दो मुझे B का dimension formula जल्दी से बताओ calculate कर क्या आ रहा है. आयुष बताएगा सबसे पहले. M1. Very good, Ayush. Good. Good, Ayush. आदित्य, अमन, वर्णिमा, लावेश. इतना लेंदी थोड़ा ना, इतना टाइम तुम लोग ले रहे हो. सर इसमें बी क्या है? बी तो कैलकुलेट करना है. टी टाइम. नहीं आदित्य, गड़बड़ करो. आदित्य तुम एक ही तरह की गड़बड़ करते हो, पता है. तुम सिर्फ पावर को सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ करते हो हमेशा. यहाँ भी वही करो. स्टेप्स मत छोड़ा करो, तुम स्टेप्स लिखा करो. सर स्टेप्स लिखो आदित्य एक बार, देखो तुम्हें खुद दिखेगा. देखिए मैं बैचेस ना सेग्रीगेट करके चलता हूँ, तो जब मुझे लगेगा आप में से कोई ऐसा है जिसकी स्पीड मिसमैच हो रही है दोनों ही तरह से, बहुत ज्यादा है स्पीड बैच के अकॉर्डिंग या बहुत कम है, तो मैं आपको एक एप्रोप्रिएट बैच में डालूँ. आफ्टर 3 मंथ्स सब सेम स्पीड पर आ जाते हैं. किसी के साथ कम एफर्ट्स करनी होती है, किसी बच्चे के साथ ज्यादा एफर्ट्स लगानी होती है, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स आप सब एक स्पीड पर हो. लाविश आंसर अब तक नहीं आया. मुस्कान, वर्णिमा. हाँ, एल की पावर में भी गड़बड़ है. वर्णिमा मुझे बताओ कहां पर प्रॉब्लम आई, क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा है? सर ये सारे एक साथ रख के कैलकुलेट करने मतलब अरे कैसे? नहीं नहीं यार, कोई दो कंपेयर कर लो. कोई दो सबकी तो डायमेंशन सेम है ना. कोई दो कंपेयर कर लो लाविश, इसे और इसे कंपेयर करो, जिसे चाहो कोई दो कंपेयर करो. सर टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? टाइम इज T1. वो कितना इजी था, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ. हाँ अब सही है आदित्य. देखो एफ और बी टी स्क्वायर कंपेयर कर दो ना. डायमेंशंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी टी स्क्वायर. गुड अमन, सही आ रहा है. m1 l1 t minus 2. b is unknown. t's time square. m1 l1 t minus 2, it's b into t square. So this b is now m1 l1 t minus 2 over t square. So we have b which is equal to m1 l1 t minus 2 minus 2. So we have b which is m1 l1, it's m1 l1 t minus 4. ये b का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है. लवेश, मुस्कान, वर्णिमा, क्लियर है ये? Yes, sir.
अब सी का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो मुझे, इतना तो मैंने कर दिया, सी का बता दो। आदित्य का सही आ रहा है, अमन का सही आ रहा है, सी बता दो, सी में तो कुछ भी नहीं है। आयुष का भी सही है, सी बता दो। लाविश, मुस्कान, सी इजी है, सी टफ नहीं है। m1 l half t minus 2. नहीं, देखो सी और एफ दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा ना मुस्कान। आप चार क्वांटिटीज है ना, चारों का सेम डायमेंशन फॉर्मूला होगा। आप इससे भी इक्वेट कर लो, ये भी m1 l1 t minus 2 है पूरा कंबाइन, या आप इसको डायरेक्टली यहां से इक्वेट कर लो, दे विल हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। आप लिख सकते हो कि dimensions of C is equal to dimensions of F, which is equal to m1 l1 t1। ऐसे आप कंपेयर कर लो, C और F फोर्स की डायमेंशन सेम होगी, m1 l1 t1। चलिए, इतना लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलो सो ठीक है, आज इससे यही छोड़ते हैं, लेट्स स्टॉप हियर। मंडे हम कंटिन्यू करेंगे, और मे भी मैं मंडे से बैच को रिशफल करूं थोड़ा सा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा अगर थोड़ा बहुत किसी की बैच शिफ्ट। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो असाइनमेंट्स आपके पास आएंगे सॉल्व कीजिए, वो पूरा सोल्यूशन के साथ इसीलिए दिया जाता है कि आप प्रैक्टिस कर पाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी न्यूमेरिकल साइंस। इट्स वेरी सिंपल। जब आप स्टार्टिंग में होता है कि किसी की स्पीड ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, बट सब आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आप कर रहे हैं असाइनमेंट्स बहुत ऑनेस्टली, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती हुई दिखने लगी, आफ्टर फ्यू वीक्स सब बराबर होगा। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर, मंडे स्टार्ट करेंगे। चलो, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।